So students, please tell me what is second law of motion, how you can define it. Yes, Mankirat. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, bache. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. Yes, very good. So very good, bache. How you can in the mathematical equation, how you can write, what is the mathematical formulation of the second law of motion? F is equal to, yes, Hriday. Ma'am, F is equal to ma. Yes, F is equal to ma. And the if we want to change the acceleration, जैसे कि means के in the terms of v and u we have to write, then what will be the formula? F is equal, a क्या होता है, v is equal to u plus at. So here you can get v minus u is equal to at. A is equal to v minus u over t. It is the other form. Here you can put a in this, F is equal to m into what you will get. Yes, Vansh Duggal, F is equal to m into m v minus into, u over t. yes, v v minus u u divided by t. So T. this is the formula for the second law of motion. So next we have discussed about the momentum. So how you can define momentum? Yes, Anshika. Yes, ma'am. Yes, what is It is the momentum? quantity. Yes, ma'am. It is the quantity of motion in a body, and it depends on its mass and velocity. Okay, how you can It is define? a vector quantity. Yes, it is a vector quantity P, which is equal to mass into velocity. Clear? So now we have also done the examples from exercise example 9.1 to 9.5. We have discussed. Now we will come to the next topic, 9.5, third law of motion. Topic 9.5, third law of motion, page number 22. 122, sorry. Third law of motion. So before defining this law, just assume that there are two bodies, two objects, 1 and 2. Clear? So, and one is जो फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, ठीक है, तो जो सेकंड बॉडी है वो भी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी 1 के ऊपर, ठीक है। अगर ये फोर्स इधर को लगा रहा है तो जो 2 है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दो फोर्सेस लग रही है, ए 1 ने 2 पे लगाई, वो एफ 2 भी क्या करेगा, 1 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ये बॉल है, ये मैंने थ्रो की है वॉल की तरफ, किसी भी दीवार की तरफ, वॉल की तरफ, व्हाट विल हैपन, इट विल कम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम फोर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरफ बॉल हिट की, ठीक है, एंड द बॉल विल हिट दैट बॉल अगेन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्या है, ये बॉल इस पे जो फोर्स लगा रही है तो बॉल भी क्या करेगी, उसी बॉल पे क्या लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी। सो बट ये देखिए जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ, ठीक है, एंड इसकी क्या है डायरेक्शन, ऑपोजिट, ठीक है। तो क्या हो गया, हाउ वी कैन डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट force on the exert a force on the second object, another object, then the second object will also instantly exert a force back on the first body. What do instantaneously means? Without any time gap, ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं रहेगा, इंस्टेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इसने इस पे किया फोर्स, तो 2 भी क्या करेगी, 1 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? So underline a definition of third law of motion on book. It is given on book. Topic 9.5 की fourth line है. The third law of motion states that when one object exerts a force on
another object, the second object instantaneously exert a force on the first. ठीक है, अगर एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, बॉडी पे फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाली बॉडी पे. ठीक है, so the important point is the force exerted, it is equal in magnitude. जो भी फोर्सेस exert होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में. ठीक है, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. क्लियर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट. फॉर एग्जांपल हम ये कोई बॉक्स है या कोई वॉल ले लो. ठीक है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो ये जो वॉल है वो भी हमें क्या करेगी, 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी. जैसे कि हमने बॉल इस तरफ थ्रो की, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो वॉल है उसने दोबारा क्या किया, फोर्स लगाया वही सेम मैग्नीट्यूड में. ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप जब भी बॉल थ्रो करते हो तो अगर वो टकरा के वापस आ रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. ठीक है ना, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, अगर आप बाउंस भी कर रहे हो तो भी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है जब वो बाउंस बैक करके आपके पास आती है. ठीक है, व्हाट यू हैव लर्नड दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडीज 1 and 2. ओके, 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगी या 2 1 पे लगाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. क्लियर है यहाँ तक? If you have any doubt you can ask, then we will proceed to the examples. Clear है definition? Okay बच्चे, so now next is there is a example that is given here. While playing football, सपोज कीजिए कि एक बॉल है, इस पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ने फोर्स लगाया और दूसरी जो ओपोनेंट जो उसके ऑपोजिट टीम का है उसने भी इस पे फोर्स लगा दिया. ठीक है, तो क्या होता है, सो व्हाट विल हैपन, then they try to kick it with a greater force and at the same time the another player of the opposite team also collided with that player. So what happened, जैसे कि दोनों ने किक, यहाँ से दोनों ने ट्राई किया कि हम दोनों इस बॉल पे किक कर रहे हैं, इसने अपनी टीम, ये दूसरी ऑपोजिट टीम का है. ठीक है, तो फिर इन दिस बोथ विल गेट हर्ट. क्लियर, क्योंकि दोनों ने फोर्स तो लगाया है. ठीक है, both will get hurt because each applies a force to the other. Okay, clear? यहाँ तक क्लियर है कि दोनों फोर्स लगाएंगे. फॉर एग्जांपल इसने भी फोर्स लगाया, ये क्या है, इसका एक्शन. दूसरे ने भी फोर्स लगाया, that will be opposite, it is the reaction. क्लियर, दोनों हर्ट होंगे इसमें अगर वो बॉल को किक कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So the next example is the example of a spring balance. You will take 2 spring balance. Okay, आपने spring balance लेना है. क्लियर, ये इसको हम नेम दे देते हैं कि ये B स्प्रिंग बैलेंस है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के साथ. ठीक है, हमने ये दूसरा जो है स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, इसको हमने A नेम दिया. ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं, A के ऊपर फोर्स, इधर से हमने इसको फोर्स लगाना है, इधर से हमने इसको खींचना है. ठीक है, यहां से हम इसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे उस साइड, ये हमारे हैंड में है. Here it is in your hand. Then you will observe that कि अगर आप जिसपे इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो जो दूसरा है B भी क्या होगा, रीडिंग क्या शो करेगा, सेम शो करेगा. अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग 20 न्यूटन आ रही है ना फोर्स लगाने पर, तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये भी क्या, जो 20 न्यूटन फोर्स कहाँ पे शो होगा, B के ऊपर भी शो होगा. ठीक है, इसको हमने वॉल के साथ, इसको हम मूव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है ये वाला एंड. ठीक है, कोई किसी वॉल से किया होगा या किसी भी तरह हमने इसको फिक्स किया है. ठीक है, इसको हमने B से अटैच किया है, A से हम यहाँ से पुल कर रहे हैं उसको. व्हाट विल हैपन, देयर इज 20 न्यूटन दैट इट विल कम
ओके, और बी भी क्या होगी, इस पे भी रीडिंग क्या आएगी, 20 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? द फोर्स विच बैलेंस ए exerts on balance B, it is the reaction. A ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या है, एक्शन। ठीक है, और B भी क्या करेगा, A के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो क्या है, उसका रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है, उसका क्या है, रिएक्शन है, और B ने भी A के ऊपर रिएक्शन, वो क्या है, उसका रिएक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? So there is an alternative statement is also there that for every action there is equal and opposite reaction. Clear? अगर ये उसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो उसका भी क्या आएगा, एक ना एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, and the reaction is equal in magnitude but opposite in direction. So there is another statement, alternative statement भी है, क्या है कि for every, एक स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस की है, स्प्रिंग बैलेंस की। ठीक है, सो अंडरलाइन ऑन द पेज नंबर 122 लास्ट फोर्थ लाइन, दिस गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट of the third law of motion, that is for every action there is equal and opposite reaction. Clear? यहाँ तक clear है? Now next is, yes Sachis बच्चे, there is any doubt you can ask. Yes, ma'am. Could you please explain this again? You can write in the chat box, your voice is not audible to me. Yes, Hriday. Ma'am, could you please repeat the ball example? I got disconnected. Okay, so in that case, for example, मैंने एक बॉल थ्रो की है इस तरफ, ये आपकी वॉल है। ठीक है, ये वॉल है। ठीक है, मैंने बॉल थ्रो की इस तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वो क्या करेगी, कोलाइड करेगी, टकराएगी वॉल से, और वो क्या आ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, एक्शन, और आपकी जो वॉल है उसने भी आपको क्या दिया, रिएक्शन दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको इस तरफ थ्रो किया था वॉल के ऊपर, सो वॉल भी क्या करेगी, ऑपोजिट रिएक्शन देगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, फोर्स का 10 न्यूटन होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा जो फोर्स लगाएगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर? Okay, ma'am. Thank you. Yes. यस वंश। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम वो ऑपोजिट वाला एग्जांपल था ना कौन सा वाला? मैम, जिसमें बॉल आप दो बंदे इकट्ठे किक करते हैं कहाँ मैम, पे? ऑपोनेंट वाला। कौन मैम, सी वाली फोर्स? इससे हमने तो पहले ये दो ही डिस्कस किए, एक बॉल वाला जो, अच्छा जो बॉल पे किक कर रहे हैं दोनों, मैम, यस वो वाला। वो पता क्या है, मैम, उसमें उसमें दोनों एक बॉल देखिए ना, सिंगल ऑब्जेक्ट पे दोनों किक कर रहे हैं, तो वो टकरा भी सकते हैं। तो जो इसने फोर्स उसके जो फीट पे लगा दी, उसने इसके फीट पे लगा दी, तो दोनों को हर्ट होगा ना, दोनों का फीट दुखेगा। मैम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे दोनों। नहीं, उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगा बच्चे, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस के उसने इस तरफ से फोर्स लगाया, उसने इस तरफ से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट Yes, टीम के। ma'am. हाँ, तो फिर इसने इस तरफ से लगाया, उसने इस तरफ से लगाया। यस मैम। हाँ जी, क्लियर? दोनों ऑपोजिट टीम के हैं, दोनों ने अपने गोल, जैसे गोल की तरफ लेके जाना है, तो दोनों ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के जो फीट है वो टकराएं। ठीक है, तो फिर दोनों हर्ट होंगे। तो ऐसे हो सकता है कि उसका जो फीट है उसके फीट पे लग जाए, उसका जो फीट है उसके ऊपर भी लग सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक ऐसे लगाएगा, एक ऐसे लगाएगा। ठीक है ना? क्लियर? So the next Yes, is, ma'am. okay, so the next, the third example, first it is of the kicking of the ball, second is of the spring balance, third is of the walking on road. Whenever you walk on road, there is a force that is exerted by your feet also on the ground. ठीक है? And that ground also exerts a
force on your feet, therefore you are able to walk on road. ठीक है, आपके जो फीट है वो भी एक फोर्स लगा रहा है ग्राउंड की तरफ, क्लियर। वैसे ही जो आपका जो ग्राउंड है वो भी क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, therefore you are able to move, okay, and this the and you will push the road in the backward direction, okay, and road exerts equal and opposite force on your feet and make you move in the forward direction. आप क्या कर रहे हो, फोर्स बैकवर्ड पे लगा रहे हो, ठीक है, और जो ग्राउंड है वो आपको फॉरवर्ड मूव करने के, इन द डायरेक्शन ऑफ, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, रोड को पुश कर रहे हैं जब हम चलते हैं, यू हैव नोटेड दैट कि हम जो फोर्स लगाते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिलो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा जो फीट है वो फोर्स लगा रहा है, क्लियर। और जो ग्राउंड है वो भी क्या कर रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एंड इट विल हेल्प टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, फोर्स हम दोनों में सेम लगा रहे हैं, जितना वो हम उस पे अगर सपोज कीजिए 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये जो ग्राउंड है हमारे ऊपर 10 न्यूटन ही लगाएगा, क्लियर। बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, हम बैकवर्ड में लगा रहे हैं, ग्राउंड क्या लगाएगा, हमारे फॉरवर्ड में लगाएगा, ताकि हम फॉरवर्ड में मूव कर सकें, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन जो है, ऑपोजिट जो फोर्स है वो इक्वल रहती है, बट उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कि जो उसका एक्सेलरेशन है इट में भी चेंज हो सकता है, क्लियर। जो उसकी हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स का इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, फोर्स क्या लगेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगी, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है। सो एंड द फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जो एक्सेलरेशन होगी, जो प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, एक्सेलरेशन क्या होगी, इट में वेरी, वो सेम नहीं होगी, ऐसे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसे, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम मास को निकाल लें या एक्सेलरेशन को निकाल लें, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F अपॉन m, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के ऊपर, ठीक है। अगर मास ज्यादा होगा, मास अगर ज्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। फोर्स कांस्टेंट रहेगा, फोर्स मींस के उसका इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, बट जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। सो इट मे वेरी, इट हाउ इट कैन वेरी, बाय द मास। अगर मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, अगर मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, क्लियर है यहाँ तक। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने ये यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू F अपॉन m, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्लियर। So for this we will take an example, we will take an example of gun, okay. Whenever the gun is fired, the we are taking a gun, I am just drawing a gun, suppose that it is a gun, ठीक है, ये गन है, clear, and when a gun is fired it exerts a forward force on the bullet, so जो ये इसकी जो बुलेट है it will go in the forward direction, जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, क्लियर। एंड द बुलेट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स, सपोज कि इसने इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, तो बुलेट भी क्या करेगी, 15 न्यूटन फोर्स लगाएगी, फोर्स इक्वल रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है, जब इसने इसके ऊपर भी फोर्स लगाया, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइल होना गन का। जैसे कि इसने इधर को फोर्स लगाया है तो बुलेट क्या कर रही है, आगे को मूव कर रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये बुलेट भी क्या करेगी, सेम फोर्स लगाएगी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, इसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसके ऊपर बेस आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं,
ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं. क्लियर. अब इसमें से बताएंगे मास बुलेट का ज्यादा है कि गन का ज्यादा है? विच है मोर मास? गन का. गन का क्या है? ग्रेटर मास है. गन इसका क्या है? ग्रेटर मास. सो अगर मास ज्यादा है, हमने क्या डिस्कस किया था? मास, अगर मैं ये कह रहे थे, हमने ये डिस्कस किया कि अगर मास क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा या मोर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? लेस. लेस हो जाएगी. एम हम मोर ले लेते हैं, मास मोर, एंड एक्सेलरेशन विल बी लेस. सो गन का अगर मास ज्यादा है तो गन की एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ गन इज, एक्सेलरेशन ऑफ गन क्या होगी? लेस. लेस मैम. ठीक है, क्योंकि मास उसका ज्यादा है. क्लियर. गन का मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन क्या होगी? लेस होगी. ठीक है. अगर हम यही केस बुलेट के लिए लें, बुलेट की मास क्या है? कम है, एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा आती है, इसलिए वो ज्यादा स्पीड से बाहर जाती है. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी है. ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है. ठीक है, तो इसलिए गन ज्यादा स्पीड से, ज्यादा वेलोसिटी से, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे जाएगी. ठीक है, बट जो गन रिकॉल करेगी, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा झटका लगेगा पीछे की ओर, ज्यादा नहीं होगा. बट जो आपकी जो गन है वो ज्यादा डायरेक्ट, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी. ठीक है. क्लियर. ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी? किसकी होगी ज्यादा एक्सेलरेशन? गन या बुलेट? बुलेट की. बुलेट की. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम तो बुलेट किस पे फोर्स लगाएगा? पीछे को बुलेट लगाएगा हाँ force? जी, हाँ जी. जो बुलेट है वो हमें थोड़ा सा रिकॉइल होता है, इसी को तो रिकॉइल कहते हैं, क्योंकि बुलेट ने भी फोर्स लगाया ना, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगता है. ज्यादा, जैसे कि एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा होगी ना गन की, वो जब मूव कर रही है, बट गन की जो है वो बहुत थोड़ी सी कम होती है, बट है. ठीक है ना. एक्सेलरेशन ऑफ गन इज लेस. इसी को हम रिकॉइलिंग ऑफ मैम गन भी फोर्स लगा रही है हाँ जी. एंड बुलेट भी फोर्स लगा रही है. मैम गन ऑब्वियसली भी फोर्स फोर्स लगा लगाएगी. रही है. हाँ, गन भी फोर्स लगा रही है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है ना बच्चे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है ना. मैम जैसे हमने मैम discuss किया था. मैम बैकवर्ड डायरेक्शन में गन भी फोर्स लगाएगी और बुलेट भी लगाएगी. नहीं नहीं, बैकवर्ड ये डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ गन, गन जो बुलेट है ना, उसका फोर्स हमें पता लगेगा. जो गन है वो तो आगे को लगा रही है, गन आगे को लगाएगी, बुलेट पीछे को लगाएगी. इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. ये भी इस पे 50 न्यूटन लगा रही है और बुलेट भी इस पे गन पे 50 न्यूटन लगाएगी. फोर्स सेम लगाएगी, एक्सेलरेशन वेरी करेगा. ठीक है ना. क्योंकि मास, क्यों एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है? क्योंकि मास डिफरेंट है, मास दोनों का अलग अलग है. ठीक है ना. गन का मास कुछ और ज्यादा होता है, बुलेट का मास इतना ज्यादा नहीं है. तो एक्सेलरेशन का कारण क्या है? मास है वो. फोर्स दोनों पे, फोर्स का कोई लेना देना नहीं है मास के साथ. ठीक है ना. इसमें ओके मैम. एक्सेलरेशन है जो सिर्फ वेरी, फोर्स दोनों का सेम है, फोर्स इक्वल है. ठीक है. मास जो है वो एक्सेलरेशन को वेरी करने में इफेक्ट कर रहा है. क्लियर है. एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है ना. एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि कितना मीटर वो होगा, डिवाइडेड बाय जो उसका कितने पर यूनिट टाइम है उसका, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द कितने चेंज हो रहा है सेकंड्स में. ठीक है ना. क्लियर है. आई वाज सेइंग हाँ जी. मैम कि बुलेट पीछे को फोर्स लगाएगा और फिर गन आगे को उसको फोर्स करेगा, या गन गन उसको आगे. गन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हेल्प कर रही है बुलेट को आगे मूव करने के लिए. जो बुलेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रही है. मैम तभी वो झटका लगता है. हाँ, वो झटका लगता है. हाँ जी, हाँ जी, वो झटका इसीलिए लगता है. क्लियर है यहाँ तक? Shall we proceed to the next example? यस मैम. Okay. So बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलर की. Whenever sailor jumps from the boat,
सो क्या है कि यहाँ पे कोई सेलर है, ठीक है, ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है, ये उसकी जो बोट है, ठीक है, तो इसने आगे जाना है, ये फोर्स किस तरफ लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। और बोट किस तरफ जाएगी, बोट किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड मैम डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बोट किस तरफ जाएगी, इस तरफ, वो जो सेलर है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, बैकवर्ड, सेलर आगे जा रहा है, बोट पीछे को जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एज अ सेलर जम्प्स अप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऑन द बोट it will move in the backward direction, clear है बच्चे। So now next coming to the activity 9.4, एक्टिविटी 9.4 में क्या किया है, एक कार्ट है, आपने दो कार्ट्स यूज करनी है, ठीक है, यहाँ पे देयर आर टू पर्सन्स दैट आर स्टैंडिंग ऑन इट, कार्ट में जो व्हील्स लगे हुए हैं, फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलना है, ठीक है, फ्रिक्शन, ये आप नेक्स्ट मीन्स के हम ये फ्रिक्शन लेस, मतलब कि ये जो है रोल्स है, ठीक है, कार्ट जो है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है, ठीक है, उसको इग्नोर करके चलो, फ्रिक्शनलेस जो कार्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब, ठीक है, इसके हाथ में एक सैंड का कोई भी बैग है, ठीक है, सो हमने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सपोज करो इसका वेट 40 किलोग्राम है, इसका 50 किलोग्राम है, ठीक है, सो इसने अगर ये इसको इस तरफ थ्रो करता है दूसरे पर्सन की ओर, व्हाट विल हैपन, दिस कार्ट विल मूव इन द in which direction, Backward direction. in the backward direction, ठीक है, ये क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं इसके लिए भी एक लाइन यूज कर लूं, ये वापस उसको थ्रो कर रहा है, ठीक है, इसने इस तरह थ्रो किया, तो ये किस तरफ मूव करेगा, Backward फॉरवर्ड direction. डायरेक्शन, ये पीछे को जाएगा, जैसे ही इसके साथ हो रहा है वैसे भी इसके साथ ही होगा ना, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, वो आगे को opposite थोड़ी ना होगा। चले जाएगा, वो आगे को, वो तो फेंक रहा है खुद, तो आप वो खुद भी आगे को कैसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये बैग में उसने इस तरफ फेंका है, इस तरफ फेंकना है, पहले तो उसने इस तरफ फेंका, वो पीछे को चला गया, अब ये जो बैग है, सैंड का बैग है, इसके पास आ गया है, इस नंबर 1 के पास आ गया, ठीक है, इसके हाथ में आ गया, इसमें से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अब ये जो सैंड है, ये इस तरफ, ये इसको बैग को इस तरफ फेंकेगा, ये खुद किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लगा रहा है, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना बच्चे, ठीक है, फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, बट मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल Opposite. मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ तक। और एक Yes, बात ma'am. देखो, अब मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, मुझे बताओ। मैम बैग मैम वाले की जिसके ज्यादा पास होगी, बैग है मैम उसका जिसके मैम, पास जिसके acceleration पास ज्यादा बैग उसकी होगा कम होगी, उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। जिसके अच्छा, पास तो नहीं है इनके उसकी जो ज्यादा इनका होगी। जो इनका जो मैंने पर्सन का वेट लिखा उस पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, मैम 50 kg वाला जो है उसका एक्सेलरेशन कम होगा एंड 40 kg का हाँ ज्यादा होगा। हाँ, देखिए ना, ध्यान से देखिए बच्चे, फोर्स तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये हमने यहाँ तक, ये तो हमें श्योर ही है कि मैं फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लगता है, डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है। अब चेंज क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन का, ठीक है, क्योंकि दोनों का वेट पर्सन का ये हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है ना, इसका मैंने 40 लिया था, मैंने शुरू में बताया कि मैं इसका वेट 40 किलोग्राम ले रही हूँ, इसका मैं 50 किलोग्राम ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी सेकंड वाले की बात करूं, इसका मास क्या है, 40 किलोग्राम, ठीक है, ये सेकंड बंदे का, जो सेकंड पर्सन है उसका है, फर्स्ट का क्या मास है, 50 किलोग्राम, तो इसमें बच्चे एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मोर हो कम हो जाएगी, मैम More इसका लेस इसका मास क्या है, Oh, कम sorry, है,
इसका मास क्या है ज्यादा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, Less. लेस। लेस। ठीक है ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस बच्चे। मैम अगर मास सेम हो दोनों ऑब्जेक्ट्स का तो मैम एक्सेलरेशन सेम आएगी बच्चे। ओके मैम। हाँ जी बच्चे, एक्सेलरेशन जब आएगी मींस के मास अगर वेरी कर रहा है ना, तो मास अगर डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन कम और लेस और मोर हो सकती है, बट अगर मास दोनों का ज्यादा है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है ना, मतलब कि ये भी अगर मैं सपोज करूँ ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा और ये भी क्या करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मूव करेगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों 50-50 ले लूँ। जस्ट सपोज मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया है, आई एम जस्ट टेकिंग कि हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैम ये दोनों फ्रिक्शनलेस कार्ट है। हाँ, ये हम बच्चे ये जो हम कार्ड भी अज्यूम कर रहे हैं बिना फ्रिक्शन के, हम कुछ भी ये अगर फ्रिक्शन हम कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, दैट यू विल स्टडी इन द +1 और +2। ओके, जब हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा जो मोटिव था समझाने का यही था कि जो फोर्स है इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर रही है वो मैंने आपको ये समझाना था, इसलिए हमने कोई भी फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं किया। तो अगर फ्रिक्शन का लगेगा तो बिल्कुल जो डेरिवेशन है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्लियर बच्चे यहाँ तक। यस। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? Each action has equal and The opposite third action. One by one. Equal One and by Yes, one, every बच्चे। action one has object exerts a opposite force and on equal another object. reaction. The second object one object exerts a force on another object. The हाँ जी। second object Instantaneously. exerts a force back on the first. ओके, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है? फॉर बहुत इजी है। For Every action has action equal Where is and equal and opposite equal reaction. and opposite Opposite? action. opposite reaction. Very good, very good. So I am pasting the Google form. Please mark your attendance, बच्चे. So students, I have pasted the Google form. You can mark your attendance. Quickly, please mark the attendance.